Hello everyone. In this video, we will talk about new education policy of India 2020. So let's start by discussing the brief history of education policies of India. So India's first education policy was announced in 1968. This was during the regime of Indira Gandhi government. So this policy was based on the recommendations of Education Commission 1964-66. Then thereafter second education policy was announced in 1986 during the Rajiv Gandhi government. So some modifications was done in this policy of 1986 in 1992 during PV Narasimha Rao government. So what we are following till today is 1992 modified policy of 1986. So after so many years, almost like 28 years from 1992, now we get 21st century India's first education policy or the third education policy of India. So this policy is based on the recommendations of K. Kasturirangan committee. So K. Kasturirangan committee, this committee was set up by the Ministry of Human Resource and Development in 2017. So what this policy does is, this policy outlines the vision of India's new education system. It replaced national policy on education as we discussed earlier. 1986 policy को ये replace करेगी. And implementation has been stated that implementation should be by 2022 because education is the subject of concurrent list. As we all know, in our constitution in schedule 7 there are 3 lists, that is central list, state list and concurrent list. Concurrent list का subject है ये education. That means state government and central government both can make laws on this subject. So Himachal Pradesh become the first state in India to implement this new policy. We will keep our discussion based on these 5 pillars. First we will talk about early education, then school education, then higher education, then on teachers' capabilities and then governance part. So let's start by early education. Early education में इस पॉलिसी में आंगनवाड़ी सिस्टम पे बात की गई है दैट आंगनवाड़ी का सिस्टम हमें इंक्रीज करना है, उनको एक्सपेंड करना है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है एंड को लोकेटिंग देम विद प्राइमरी स्कूल. मीन्स जहाँ भी प्राइमरी स्कूल है हमारा आंगनवाड़ी भी वहाँ हो. दैट मीन्स ऑब्वियसली इनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाना है टू द जनरल पब्लिक. नाउ कम टू स्कूल एजुकेशन. स्कूल एजुकेशन में द बिगेस्ट changes, these two changes are the very biggest changes of new education policy. So first change किया गया है that universalize करना है education को. That means right of children to free and compulsory education act 2009 जो कि currently covers 6 to 14 years of students, इनको increase कर दिया जाएगा 3 to 18 years तक. So 6 to 14 से लेके 3 to 18 कर दिया जाएगा. नेक्स्ट चेंजेस पेडागोजिकल स्ट्रक्चर. इसमें जो करंटली व्हाट वी फॉलो इज 10+2 सिस्टम. मींस क्लास फर्स्ट से लेके क्लास 10 तक इज कवर्ड अंडर दिस 10 एंड क्लास 11th एंड 12th दिस इज 10+2 सिस्टम. नाउ दिस विल बी चेंज टू 5+3+3+4. 5 means foundational. This is a foundational stage which covers the students of age 3 to 18. Means class 1 and 2 plus class 1 and 2 से पहले 3 साल of preschool. Thereafter 5 के बाद 3. That means age 8 से 11 classes 3rd, 4th and 5th. Then 3 classes 6, 7th, 8th and then finally 4th classes 9 से लेके 12 तक. So this is how our pedagogical system will be changed from 10+2 to 5+3+3+4. Now co-curriculum and vocational subjects will be treated at same level. मतलब see, in India we don't treat or we don't give value to vocational subjects
as much as value we give to core subjects. Like in many foreign countries, what happens is students do part-time job as a carpenter, as an electrician, and they earn their livelihood. They earn their college fees or university's fees by that. So in India, if someone is doing, say, electrician job, then we put him or her into lower strata. So what this policy does is core curriculum subjects and vocational subjects will be treated on the same level from now onwards. वोकेशनल एजुकेशन स्टार्ट कर दी जाएगी क्लास 6 से, इंक्लूडिंग इंटर्नशिप्स. सो क्लास 6 का बच्चा भी वोकेशनल सब्जेक्ट सीखेगा, इंटर्नशिप भी करेगा. स्टूडेंट्स इन क्लास 9 to 12 मस्ट रिसीव वोकेशनल एजुकेशन ऑन एटलीस्ट वन वोकेशन. स्टूडेंट्स विल बी अलाउड टू टेक अप कोडिंग फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड. ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है. ये अभी करंटली चाइना में फॉलो भी होती है और चाइना की ग्रोथ हम देख ही रहे हैं. सो क्लास 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी बच्चों को. नेशनल मील की यहाँ बात की गई है. दैट मीन्स अभी जो लंच मिलता है उसके साथ ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा कई गवर्नमेंट स्कूल्स में. रेगुलर एग्जाम्स की बात की है. दैट ऑल स्टूडेंट्स विल टेक स्कूल एग्जामिनेशन इन ग्रेड्स 3, 5 and 8 विच विल बी कंडक्टेड बाय अप्रोप्रिएट अथॉरिटी. इसका मतलब कहीं ना कहीं बोर्ड की बात की गई है. दैट 3rd क्लास, 5th क्लास एंड 8th क्लास में भी बोर्ड को इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा. क्लास 10th and 12th बोर्ड एग्जामिनेशन टू बी मेड इजियर टू टेस्ट कोर कॉम्पिटेंसी रेदर देन, वही रट्टे वाली बात है कि 10th and 12th के बोर्ड्स को इजी कर दिया जाएगा. दैट जो उनकी कोर कॉम्पिटेंसीज चेक हो पाए स्टूडेंट्स की रेदर देन देयर मेमोराइज्ड फैक्ट्स. प्लस एग्जाम्स भी मोर देन वन, दैट इज ट्वाइस और थ्राइस कंडक्ट किए जाएंगे. करिकुलम की कंटेंट की बात की है. दैट करिकुलम को रिड्यूस कर दिया जाएगा. दैट विल गिव स्पेस एंड टाइम टू द स्टूडेंट्स फॉर द क्रिटिकल थिंकिंग. दे कैन थिंक मोर होलिस्टिकली, इंक्वायरी बेस्ड, डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड, एनालिसिस बेस्ड लर्निंग हो. PTR मतलब होता है प्यूपिल टीचर रेशो. मीन्स जिसको 30:1 रखा गया है. दैट मीन्स 30 बच्चों पे एक टीचर हो. इसको इंश्योर किया जाएगा इस लेवल को इन एवरी स्कूल. बट जहाँ पर थोड़ा नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे वहाँ पर इसको 25:1 रखा जाएगा. दैट मीन्स 1 टीचर फॉर 25 स्टूडेंट्स. लैंग्वेज की बात की गई है. दैट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन स्कूल्स में क्लास 5th तक तो होगा ही होगा, बट प्रेफरेबली अगर क्लास 8 तक या उससे ज़्यादा भी हो तो अच्छी बात है. दैट द मीडियम इंस्ट्रक्शंस विल बी देयर होम लैंग्वेज और मदर टंग. ये प्रैक्टिस अभी यूरोप या जर्मनी में फॉलो होती है. डेट मीन्स ये देखा गया है कि अगर बच्चों को इंस्ट्रक्शंस उनके मदर टंग में दी जाएंगी देन दे विल लर्न मोर, दे कैन लर्न मोर. सो एंड लैंग्वेजेस लर्नड विल बी द चॉइसेस ऑफ स्टेट्स, बिकॉज स्टेट्स को यहाँ इसलिए इंपॉर्टेंस दी गई है बिकॉज एजुकेशन एज वी डिस्कस्ड अर्लियर इज अ कॉन्करेंट सब्जेक्ट एंड ऑफ स्टूडेंट्स. सो नाउ विल मूव टू हायर एजुकेशन. हायर एजुकेशन में ग्रोस एनरोलमेंट रेशो की बात की गई है विच इज़ करंटली अराउंड 26%. उसको 50% ऑलमोस्ट डबल कर दिया जाएगा बाय 2035. कॉमन एंट्रेंस की बात की गई है. दैट ऑल हायर एजुकेशन का कॉमन एंट्रेंस हो ऑल ओवर इंडिया. दैट इज़ टू बी हेल्ड बाय NTA. NTA स्टैंड्स फॉर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी. इसको ऑप्शनल रखा गया है, मैंडेटरी नहीं रखा गया है. और इसमें JEE मेंस एंड नीट जो कि MBBS एडमिशन्स के लिए होते हैं इनको अलग रखा गया है. नाउ मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस की बात की गई है कि हमारी जो अभी यूनिवर्सिटीज फॉर एग्जांपल IITs इज़ फॉर बेस्ट फॉर द इंजीनियरिंग, IIMs मैनेजमेंट के लिए. इसी तरीके से अभी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाए. दैट मीन्स एक इंस्टीट्यूशन हो जो मैनेजमेंट भी देगा, आपको इंजीनियरिंग की डिग्री भी देगा, MBBS भी करवाएगा, लाइक दैट. कोर्सेज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. हायर एजुकेशन में वही जो हमने पहले बात की थी, वोकेशनल कोर्सेज को भी इंटीग्रेट करा जाएगा अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है. दैट दिस बॉडी विल बी क्रिएटेड टू प्रमोट रिसर्च इन द कंट्री. प्लस फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को भी ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा दैट दे कैन सेट अप देयर कैंपसेस इन इंडिया एज वेल.
इम्पॉर्टेंट चेंजेस 4 ईयर ऑफ यूजी प्रोग्राम्स, जो कि अभी हम व्हाट वी डू इज कि 3 years ऑफ ग्रेजुएशन एंड 2 years ऑफ पोस्ट ग्रेजुएशन. नाउ 4 years ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज विद मल्टीपल एग्जिट ऑप्शंस. इसमें एग्जिट ऑप्शंस रखे जाएंगे लाइक अगर स्टूडेंट्स 1 साल कंप्लीट करते रहें देन ही विल गेट सर्टिफिकेट. इफ ही completes 2 years then he will get diploma. If 3 years then bachelor's degree. If 4 years then bachelor's plus research. So this is how new graduation courses will be. Now the important changes like academic bank of credit. This will be store scores of the students what they will get in their higher education. But this system अभी currently follow होता है. If you all know that DigiLocker, इस ऐप से हम अपने 11th 12th के सर्टिफिकेट्स डाउनलोड कर सकते हैं. देन नेशनल असेसमेंट सेंटर की बात की गई है, दैट इज़ परख. परख स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एनालिसिस ऑफ नॉलेज एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट. इसको क्रिएट किया जाएगा टू असेस द स्टूडेंट्स. हायर एजुकेशन कमीशन विल बी सेट अप. हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया. This will act as a single umbrella body for regulating the entire higher education in India. इसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन को अलग रखा गया है. इसके 4 वर्टिकल्स होंगे. फर्स्ट वन इज NHERC, ये रेगुलेटरी पार्ट के लिए है. नेशनल अक्रेडिटेशन काउंसिल फॉर द अक्रेडिटिंग बॉडी है. हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल ऑब्वियसली ग्रांट्स के लिए, फाइनेंस एस्पेक्ट्स के लिए. देन जर्नल एजुकेशन काउंसिल ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को फ्रेम करने के लिए. ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है लर्निंग आउटकम, दैट व्हाट ऑल इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट. सो उसके लिए GEC बनाया जाएगा. इसमें एक प्रोविजन है, NAC को अलग कर देंगे UGC से. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. NAC स्टैंड्स फॉर नेशनल एकेडमिक अक्रेडिटेशन काउंसिल. इसको UGC से सेपरेट किया जाएगा एज द ऑटोनॉमस बॉडी. अफिलिएशन सिस्टम जो आज हमारा अभी भी एप्लीकेबल है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा नेक्स्ट 15 years और ऑटोनॉमी दी जाएगी कॉलेजेस को. लास्ट प्रोविजन इन हायर एजुकेशन इज दैट NETF को स्टैब्लिश किया जाएगा, दैट इज नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम. दिस विल बी क्रिएटेड टू प्रमोट फ्री एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहांस लर्निंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एजुकेशन सिस्टम. Now we'll move towards the teachers aspects. See, अब students advance होंगे तो teachers का भी advancement होगा. Teachers की capabilities को enhance करने की बात की गई है, that teacher बनने के लिए a 4 year of bachelor's of education. This will be the minimum requirement to become a teacher. NCTE, that is National Council for Teacher Education, they will frame National Curriculum Framework for Teacher Education by 2021 and National Professional Standards for Teachers by 2022. So ये दोनों चीज़ें will be developed by NCTE in consultation with NCERT. Now our last aspect is governance part. On the part of governance, यहाँ एक न्यू बॉडी का नाम दिया गया है, that is राष्ट्रीय शिक्षा आयोग or the National Education Commission. This will be set up and this will be directly headed by the Prime Minister of India. MHRD, that is Ministry of Human Resource and Development, जो कर दिया गया है to Ministry of Education. पब्लिक इन्वेस्टमेंट को डबल करने की बात की गई है एजुकेशन में. करंटली जो 10% ऑफ टोटल पब्लिक एक्सपेंडिचर व्हाट वी स्पेंड ऑन आवर एजुकेशन, दिस विल बी डबल टू 20% बाय नेक्स्ट डिकेड एंड नेक्स्ट 10 years. 6% ऑफ GDP का खर्चा करने की बात की गई है एजुकेशन पे, जो कि करंटली अराउंड आई थिंक 1.5-2% के आसपास होगा. दिस विल बी टेकन टू 6% ऑफ GDP, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. सो दिस ऑल we discussed about the main provisions of National Education Policy 2020. So on paper, like everything seems to be very perfect and everything seems to be so promising, but the real part is implementation, that only time will tell ki how better the implementation will be done. Let's hope for the best, fingers crossed. So this is all about the National Education Policy 2020.
I hope I am able to contribute towards your knowledge. You can ask your queries and can provide feedback by writing in the comment section. Thank you.